Hello children, today we are going to start with chapter 3, that is our changing earth. So in this chapter I will tell you about our earth planet where we all live, and it is the only planet where life is possible and there is presence of water, air, right? So in year 2013 a new island जिसका नाम है जल Ko was created on the offshore of Gwadar in Balochistan, Pakistan. This was formed after the major earthquake that rattled Western Pakistan on September 24, 2013. This island resubmerged and disappeared in 2016. दोबारा से disappear हुआ कब 2016 में. Right children? Now let's study about such changes. अब हम उन changes के बारे में पढ़ते हैं जो हुए हैं that happen on the earth. Now, we might not have noticed that earth is changing constantly. देखो हम ये चीज तो नोटिस नहीं कर सकते कि जो अर्थ है वो हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. ठीक है, यू कैन नॉट नोटिस दैट थिंग, बट एट द टाइम्स व्हेन दिस चेंजेस आर सडन, जब कुछ सडन चेंजेस होते हैं, सडन जैसे अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो इरप्ट हो गया, सो ये क्या होता है, कुछ सडन चेंजेस होते हैं एंड वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट दीज चेंजेस. So earthquake and volcanic eruption, what are these? These are the internal process. And why do they occur? They occur due to movement of tectonic plates. जो tectonic plates का movement होता है उसकी वजह से क्या होता है, earthquake आता है और volcanic eruption होता है, right? These movement causes changes on earth surface, either as formation of mountains or sinking of land or its vertical or horizontal displacement. External process take place on the surface of the earth. जो external process है वो कहाँ होता है, अर्थ के surface पे होता है, though they are slow. It takes thousands or even millions of years to bring about small changes by winds, moving ice, sea waves और running water. ठीक है, आप wind की वजह से या ice move कर रही है या sea water move कर रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत कम changes देखने को मिलते हैं. So these changes are erosion, या तो erosion हुआ हो या फिर formation हुआ fine soil deposit का. Both internal and external forces work together to make gradation on the surface of the earth. दोनों, चाहे वो external हो चाहे इंटरनल हो, दोनों फोर्सेस काम करती है. सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट. जो आपकी मूवमेंट है अर्थ की वो किस पे डिवाइडेड है, किस बेसिस पे, ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन इट. दीज फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड हियर. फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर एक्ट करती है वो एंडोजेनिक होती है और जो बाहर एक्ट करती है वो एक्सो. एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर. Right? So let's study about some endogenic और exogenic forces. If we talk about endogenic, we have two. एक तो सडन होती है जो एकदम से होती है और एक होती है डायस्ट्रॉपिक. ठीक है, सडन फोर्सेस में आपका अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया और लैंडस्लाइड हो गया. दीज आर द सडन फोर्सेस. इफ वी टॉक अबाउट कॉजेस जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, वो क्या है, आपका डायस्ट्रॉपिक फोर्स है. इफ वी टॉक अबाउट एक्सोजेनिक, मतलब ये इरोजनल और डिपोजनल एक्टिविटीज की वजह से होती है, जैसे आपका रिवर ने कर दिया, wind, sea waves or glacier. These are the exogenic forces that happens due to erosional and depositional forces. Now volcano. What is volcano? It's an opening, vent है, right, in the earth crust through which magma as well as other material erupts suddenly. When the magma comes out of the earth, it is called lava. देखो क्या होता है कि क्रस्ट जो होता है, आप देखेंगे जो क्रस्ट है जिससे मैग्मा एज वेल एज अदर मटेरियल बाहर निकलता है. ठीक है, वो एक ओपनिंग होती है एंड व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ, जब मैग्मा अर्थ से बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, राइट. सो इट कूल्स डाउन टू फॉर्म रॉक. द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इंटीरियर थ्रू नैरो ट्यूब लाइक ओपनिंग. इट इज फनल शेप बेसिन अराउंड द वेंट, जिसको हम क्रिएटर कहते हैं. इफ इट टॉक अबाउट द लार्जेस्ट वॉल्केनो, वो आपका कौन सा है, आपका मोना लाओ इन हवाई. Now earthquake. Next is earthquake. It can be defined as the sudden movement. क्या है ये, sudden movement है आपकी अर्थ क्रस्ट की, which is caused by release of stress, जो आपका accumulate होता है along the fault lines or by volcanic activity. The point of origin of on the earth is called focus. At the point on the earth surface which is directly above the focus. देखो जो focus के, जैसे आपका यहाँ वेलकन आया, फोकस हो गया, और जो इसके ऊपर का जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, आपका एपी सेंटर.
दिस इज एपीसेंटर। और जो उसका वाइब्रेशन होता है वो स्प्रेड आउट होता है किस फॉर्म पे? इट इज फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक वेव्स फ्रॉम द फोकस। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मैक्सिमम, अगर हम बात करें जहाँ पे एपीसेंटर होगा मतलब यहाँ पे, और जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही वो आपके एपीसेंटर से अलग की तरफ मूव करेगा। समटाइम्स इफ वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक, क्या होता है बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, राइट? जिससे क्या होता है बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है। सो लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस जो होते हैं दे आर द आउटकम ऑफ द अर्थक्वेक इन माउंटेन्स। ठीक है, अगर हम माउंटेन्स की बात करें, जो अर्थक्वेक का माउंटेन आउटकम होता है वो क्या होता है? ब्रांचेस और लैंडस्लाइड होता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि माउंटेनियस एरियाज में लैंडस्लाइड्स ज्यादा होती है। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, यहाँ पे आपको हाई टिडल वेव्स देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता है? सुनामी आ जाती है, राइट? जो इंटेंसिटी है आपकी अर्थक्वेक की और मैग्नीट्यूड जो है वो आप हम किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। द ट्रेमरस ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक विद द रिक्टर स्केल वैल्यू ऑफ 6 और मोर आर कंसिडर्ड डेंजरस। इनको हम क्या कंसिडर करते हैं? डेंजरस कंसिडर करते हैं। नाउ प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, देखो हम इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, राइट? लेकिन हम इसके इम्पैक्ट को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? सो इफ आई earthquake occurs, keep the following points in mind. Find a safe spot अंडर, या तो आप टेबल के नीचे जाइए, ठीक है, किचन काउंटर और डेस्क इफ यू आर इन होम और इन अ स्कूल। Stay away from electrical circuit wires, mirror windows, picture frames, moving vehicles and elevators. These precautions you can keep in your mind. Next is the case study given here of the Bhuj earthquake जो गुजरात में आया था in 2001, राइट? ये मैसिव अर्थक्वेक था, इसने भुज गुजरात को 845 पे क्या करा था? एपिसेंटर था वो आपका क्लोज टू भुज था। और कितना मेजर करा? जो स्केल था वो आपका मेजर हुआ 6.9, और ड्यूरेशन क्या थी? 1 मिनट की थी। एंड व्हाट इट कॉजेज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लोगों की लाइफ चली गई, उनके प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। एंड हाउ मेनी पीपल डाइड? अबाउट 50,000 पीपल। और thousands of people become homeless, उनका घर टूट गया, right? Now, our next topic that is change in landforms. First is your weathering and next is erosion. What is weathering? It is breaking down of rocks on the surface of the earth due to action of wind, heat, rain, flood, ice and motion. Next is erosion, which means veering away from landforms because of different agents जैसे wind, water, flood हो गया आपका. The eroded material are carried away by the medium such as water or wind and are deposited elsewhere. What they create changes in the nature और structure of the landform. ये करता है कि जो आपके जो भी चेंजेस है नेचर में हो रहा है स्ट्रक्चर में उनको करता है। एंड लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ चेंज इन लैंडफॉर्म। फर्स्ट इज योर रिवर। वाटर इन अ रिवर फ्लो कंटिन्यूअसली, आपने देखा होगा जो पानी है रिवर में वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, और वो क्या करता है? इरोड भी करता है लैंडफॉर्म्स को। और जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है हमारी वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और वाटर को रश करते हैं डाउन टू द ग्रेट फोर। और जो इरोडेड मेटल जैसे पीस ऑफ रॉक्स अपने साथ लेके जाती है एंड द मटेरियल कैरीड बाय द रिवर इज रेफर टू एज इट्स लोड। और जो रिवर डिपॉजिट करती है लोड को और उसकी लैंड पे जाके शेप को चेंज करती है, एंड इट मे आल्सो फॉर्म वाटरफॉल इफ इट फॉल्स डाउन एट द एंगल फ्रॉम द हाइट। ठीक है, और एक ये क्या फॉर्म करती है? वाटरफॉल भी फॉर्म करती है। और रिवर एक क्या फॉर्म करती है? लार्ज बेंड। ठीक है, एक लार्ज बेंड की तरह फॉर्म करती है, इसको हम मियांडर कहते हैं, right? And twisting and turning and its interplanes as the river water continuously erode, right? It cuts off the meander, ऐसे meander को cuts करता है और ये ऐसे एक तरफ को टूट के बच जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ऑक्सबो लेक, राइट? नाउ रिवर ऑल्सो फॉर्म ऑफ फ्लड प्लेन, एक फ्लड प्लेन फॉर्म करती है। एंड when river water overflows the banks and the floods the surrounding area, क्या करते हैं? जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं आसपास के होते हैं, जब रिवर्स ओवरफ्लो करने कर जाती है तो वहाँ क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है, राइट? द रिवर वाटर स्लोज डाउन as the river approaches the sea and the river divides into stream, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे, और जैसे ही रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है what it causes the load to be deposited with the each distributed forming its own mouth, और क्या फॉर्म होता है? डेल्टा फॉर्म होता है।
Now sea waves, the change in the landform along the coast. It is caused because of sea waves. The rocks along the coast are continuously struck by the sea waves. और वो क्या कॉज करता है? क्रैक्स. ऐसे करके ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. एंड ओवर अ टाइम व्हाट दे फॉर्म अ हॉलो स्पेसेस, जिसे हम सी केव्स कहते हैं. लाइक दिस यू कैन सी हियर. ऐसे करके बन गया. ये क्या होगा? सी केव्स होगा. फर्दर इरोजन एक आर्क कॉज होता है जिसको हम सी स्टैक कहते हैं. ठीक है, ऐसे वॉल रह जाती है बीच में और ये इसको काट के पानी आगे आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? सी स्टैक कहते हैं. एक सी क्लिफ होता है, यू कैन सी है, ये रॉकी फॉर्मेशन है, कोस्ट है. ये राइज करता है वर्टिकल. आप देखो इधर से कटता चला गया, वर्टिकली राइज हुआ अबव द सी वाटर. देन वी हैव बीचेस व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सी वेव, जो लोड्स और मटेरियल को डिपॉजिट करती है एंड दे कैरी ऑन द कोस्ट. नाउ आइस. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? दे आर रिवर ऑफ आइस. रिवर ऑफ आइस होती है जो कंटिन्यूअसली क्या करती हैं? हमारे सरफेस को इम्पैक्ट करती है, एक्सपोज द रॉक अंडरनेथ एंड क्रिएटिंग अ डीप हॉलो एरिया. द कोल्ड टेम्परेचर प्रिवेंट्स द आइस फ्रॉम मेल्टिंग. एज समर अप्रोचेस, जो आइस होती है वो मेल्ट करती है एंड वाटर फिल्स अप इन दीज हॉलो एरियाज एंड व्हाट दे डू, दे ट्रांसफॉर्म देम इनटू लेक. और किस में ट्रांसफॉर्म कर देती है? लेक में ट्रांसफॉर्म कर देती है. The material that the glacier carry also get deposit, thus forming glacier moraines. ठीक है, ऐसे ग्लेशियर मोरेन्स फॉर्म करते हैं. Now wind. Another agent that changes the landform is wind. If the movement of can be seen in the desert, it carries sand particles over long distance and deposit them upon coming in contact with hard surface like rock, वेजिटेशन और हिलॉक. व्हेन द विंड स्लोज डाउन, जैसे जैसे विंड स्लो डाउन हो जाते हैं जो सैंड होता है एयर में वो फॉल कर जाता है एंड व्हाट इट फॉर्म सैंड ड्यूज. लाइक इरोजन बाय विंड इन द डेजर्ट, ऐसे ऐसे एक मशरूम रॉक फॉर्म हो जाता है. नाउ व्हाट इज मशरूम रॉक? इट इज अ रॉक pedestal. Light grains of sand are carried away by the wind over a very large distance and get deposited. For example, like Loess Plain of China. ये आपका किसका एग्जाम्पल है? मशरूम रॉक का. Right? So this is all in this chapter, how the changes on the earth occur. I have told you about all erosional, depositional forces and exogenic or endogenic forces. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.